Once again, I welcome you all in my new video, and in this video we are going to talk about excretory system of human beings. Okay, so excretory system is made up of a pair of kidney, a urinary bladder, a pair of ureter, and a urethra. Okay, so we should start with the excretion. Okay, ये excretion होता क्या है? क्योंकि excretion ये एक प्रोसेस है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं. ओके बच्चों, चलो. एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके, especially nitrogenous waste product like urea, uric acid and all these. Okay, and one more thing, this is the some excretory products of human are urea, uric acid, ammonia and creatinine. Okay, creatinine is excreted by the body by the digestion of the fat. Okay, digestion of the fat. Okay, in higher amount. Now human excretory system we have discussed already. So first point is the kidney. Kidney is a dark red bean shaped structure. Okay, size 11 into 5 into 3 centimeter, weight 130 to 150. So 130 gram is the average weight into the case of female, and 150 is the average weight of the kidney in the case of male. Kidney has two parts: outer parts cortex, inner parts medulla. Outer parts cortex and inner part medulla. Okay, and before we each kidney has many nephrons. So nephron is the filtering unit. Before we go to study the nephron, we should know with the diagram given into class 10th. See students, this is the kidney and renal artery. Renal artery is the blood vessel which supplies the blood to the kidney. Renal artery. Okay, and these are the renal veins. So left renal artery. Okay, this is the left kidney, this is the left renal vein, left renal, this is the okay, this is the renal artery is the reddish one, bluish one is the renal vein, and this is the aorta. Okay, and left ureter, right ureter, and vena cava. Okay, it is given urinary bladder and urethra. Okay, in the case of male urethra it is longer than female. Okay, so this is students of my school will draw this diagram. Okay, and now we are going to study the nephron. The smallest structure and function unit of kidney is called nephron. Okay, each kidney has 1 to 1.2 million nephron. We can say 1 to 1.2 million nephron. Okay, nephron are also called filtration unit. Filtration means ये क्या करती हैं, बॉडी से यूरिया यूरिक एसिड को निकालती हैं. अब आप कहो बच्चों यूरिया कैसे बनता है. यूरिया इज फॉर्म्ड इनटू द लीवर. ठीक है, जैसे अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड जो होता है उससे क्या निकलता है, अमीनो ग्रुप. क्या निकलता है, अमीनो ग्रुप मतलब कि NH2 ग्रुप, और यही बनाता है क्या, अमोनिया. क्या बनाता है, अमोनिया. अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक. इट कैन डिस्ट्रॉय द टिश्यूज विद इन सेकेंड. तो ये क्या था, विद इन सेकेंड इसका कन्वर्जन कहाँ जाता है, यूरिया में. कहाँ होता है, यूरिया इज द लेस टॉक्सिक. ठीक है, और यही यूरिया ब्लड थ्रू के होते होते ब्लड स्ट्रीम्स होते कहाँ पहुँचता है, किडनी में. और किडनी में पहुँचने पर यहाँ पे होती हैं ये नेफ्रॉन. ओके, नंबर कितना होता है इनका, नंबर इज वेरिएबल फ्रॉम 1 to 1.2 मिलियन, मतलब 10 से 12 लाख. ओके, क्या होती हैं, एक किडनी में इनके नंबर होते हैं. ठीक है, और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, यूरिया जो है ब्लड से
रिमूव किया जाता है, यूरिया ब्लड से रिमूव, यूरिया भी और यूरिक एसिड भी एंड अदर स्केटेड प्रोडक्ट्स आल्सो। ठीक है, तो वी शुड नो अबाउट द नेफ्रॉन। ओके, फर्स्ट theoretical part. See, nephron is divided into two parts. First is the Malpighian capsule or Malpighian body. Second is the renal tubule. Means this is a tubular structure, and this is a cup-like structure. This is a cup-like structure. If you see the diagram of the nephron, see. Like this. Like this. Okay, so this is the, we can say, Bowman capsule. Bowman capsule. Okay, and from here to here, this is the, here to here, this is the renal tubule. This is the renal tubule. Okay, यहाँ पे, यहाँ से क्या बच्चों, ये है renal tubule means a tube like structure which is related with the kidney. इसको क्या बोलते हैं, renal. ठीक है, तो बुमन कैप्सूल होती है, और बुमन कैप्सूल तो यहाँ पे ये होगी ना, लेकिन ये किसका पार्ट है, मेल्पिगियन कैप्सूल और मेल्पिगियन बॉडी। तो यहाँ पे क्या होती है ना, आर्टरी, जो हार्ट से आर्टरी जाती हैं, जो एंटर करती है कहाँ पे, किडनी में। कहाँ करती हैं, किडनी में। मान लो ये किडनी हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ये यूरेटर हो गया, जो यहाँ पर रीनल आर्टरी आ रही है, अगेन ब्रांचेज इनटू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल में जब ये बनती है ना, तो ये क्या करती हैं, ये फिर आर्टेरियोल्स ही इसी जो 1.1 से 1.2 मिलियन जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके यहीं बोमन कैप्सूल के पास जाकर के देखो, ऐसे खूब सारा कॉइलिंग करती है। ठीक है, और यहाँ बन जाता है टफ्ट आर्टेरियोल्स। इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। सो बोमेन कैप्सूल ए कप लाइक स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ टॉप द आर्टेरियोल्स। ओके, नोन एज ग्लोमेरुलस। और इन्हीं दोनों क्या मिला के बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन कैप्सूल यहाँ पे है, बट इट इज अ बोमेन कैप्सूल, अ पार्ट ऑफ द कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, और यहाँ मेल्पिगियन बॉडी लिखी हुई है, जो कि ग्लोमेरुलस से मिलने पे ही बनती है। ठीक है, टॉप मीन्स गुच्छा, अ ग्रुप ऑफ ह्यूज नेटवर्क ऑफ द आर्टेरियोल्स। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा क्या है, रेनल ट्यूब्यूल में पीसीटी। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, हेनले ट्यूब्यूल है। क्या बच्चों, सॉरी, दिस इज द रेनल ट्यूब्यूल, जिसका ये पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला। बोमन कैप्सूल को जो पास वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल मतलब पास। ओके, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। पर्सन नेम्ड हेनले डिस्कवर्ड इट, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम, लूप ऑफ हेनले। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आता है ये लूप ऑफ हेनले, इतना दूर का है ना बच्चों, ये खत्म होकर ऊपर आके फिर से ही बनाता है कॉइलिंग। तो इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब कि दूर वाला। देखो, अगर इस पेन के पास का पोर्शन करें तो ये है प्रॉक्सिमल पार्ट इस कैप का, ये क्या है, डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टल, बीच में क्या है, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले जितनी लंबी होती है, यूरिन उतना ही कंसंट्रेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंगारू रैट का नाम सुना होगा। कंगारू रैट में लूप ऑफ हेनले सबसे लंबी होती है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, ऑलमोस्ट समझो कि सेमी सॉलिड, इतना गाढ़ा कर देता है उसमें।
क्योंकि दे हैव टू कंजर्व द वाटर। और सबसे लंबी कहाँ पे होती हैं बताओ? जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स में तो लूप ऑफ हेनले पाई भी नहीं जाती है, जैसे फ्रॉग वगैरह में, क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी में ही यूरिन डिस्चार्ज करना है, तो दे डोंट हैव इशू ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। ओके, सो बच्चों ये इस बारे में बात चल गई, ठीक है। तो ये हो गया, पीसीटी बता दिया, हेनले लूप, हेनले लूप, दिस इज लूप, डूप नहीं, डिस्टल काउंटर, डीसीटी एंड पीसीटी, ठीक है। तो स्टडी करते हैं इसके बारे में। यूनिटी ब्लडर, नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनिटी ब्लडर इज मस्कुलर, पियर शेप्ड एंड स्टोर्स अबाउट 300 to 400 यूरिन नॉर्मली। Okay, it is normal, but 750 ml in the abnormal cases. For example, you come to the class, okay, and classes are going on continuously up to 4 period. Okay, so in that case, urinary bladder may store 750 ml of urine. Okay, उसके वहाँ तक कर सकता है, उसके बाद आप क्लास में क्या होते हो, आप रुक नहीं पाते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, द साइज ऑफ द फीमेल यूरिनरी ब्लडर इज लिटिल बिगर देन मेल। फीमेल के जो यूरिनरी ब्लडर होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं मेल से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, यूरेटर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल विच पासेस यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी के बारे में हो गई। यूरेथ्रा पासेस यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लडर टू आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ दिस डायग्राम आपको बनाना ही है, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं आप मत बनाइएगा, आप बनाइएगा इस वाला डायग्राम को। दोज हु डोंट हैव बुक, आई एम जस्ट जूमिंग इन, पॉज द वीडियो, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सुनो बच्चों, देखो यूरिन स्टेप्स के तो स्पेशली देर आर 3 मेन स्टेप्स। ओके, यूरिन के कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं या बनने कर सकते हैं, ठीक है, बनना और फिर इसको कंसंट्रेट करना। तो फर्स्ट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव, SELECTIVE, दिस इज सेलेक्टिव। एक्चुअली गलत हो गया था ये, तो मैंने बाद में लिखा। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो coming first to the theoretical part, filtration between blood vessel and blood vessel means arterioles। arterioles भी तो क्या है, arteries भी क्या है, एक तरह की blood vessels है। arterioles means blood vessel and Bowman capsule। second, filtration between loop of Henle, PCT and blood vessel। filtration between, third is the tubular secretion, filtration between DCT and blood vessel। so students देखो, one more time I am just drawing a diagram, otherwise you can't get see। बच्चों देखो ये हो गया बोमन कैप्सूल, ओके, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, बार बार मैं बता रहा हूँ इसको, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मतलब कि ये क्या करती हैं, जो ऐसे और भी नेफ्रॉन होगी बच्चों ना, सो दे गेट टुगेदर, दे अटैच टुगेदर एंड फॉर्म अ वन डक्ट विच लीड्स टू द यूरेटर। ऐसे हजारों 10 से 12 लाख जो होंगे ना, इस तरह से आपके कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्ट नेम सजेस्ट यू दैट कलेक्टिंग डक्ट, ऐसी डक्ट जो कलेक्शन करती हो क्या, यूरिन का, जो इसमें बन के आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे फिर क्या होगा, हजारों लाखों मिलके अंतिम में एक हो जाएगी, ठीक है, और एक मिल क्या मिल जाएगी, ये यूरेटर में मिल जाएगी, ठीक है भाई। किडनी से एक ही यूरेटर निकलती है बच्चों, ठीक है। तो क्या है, पहला देखो यहाँ पे ब्लड वेसल बताया था ना आपको, देर आर ब्लड वेसल्स, एक ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होती है, इसमें प्रेशर हाई होता है, क्या होता है, ब्लड का प्रेशर हाई, क्यों, क्योंकि ये आर्टरीओल्स ना जो 2 पार्ट में होती है, एक होती है एफरेंट, एक होती है इफरेंट। फर्स्ट इज द एफरेंट आर्टरियोल
एंड इज नेक्स्ट इज द इफरेंट आर्टरियोल्स। देखो आर्टरियोल जो आर्टरियोल्स होती हैं या आर्टरी होती हैं, आर्टरी आर्टरी ही आती है, आर्टरी आर्टरी जाती भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ कैपिलरी बन जाएगी, लेकिन एक डिफरेंस होता है, ठीक है। एक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ आती है तो हाई, इनका जो ल्यूमन होता है हाई होता है। जब यहाँ से जाने लगती है बच्चों ना, तो यहाँ पे इनका ल्यूमन क्या होता है, कम होता है। देखो ये ल्यूमन कम होगा, तो हाई इधर यहाँ पे है, यहाँ पे लो है, तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों ना। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमन है, इतना ल्यूमन है, अंतिम में कम हो गया, तो ज़्यादा वाले पे प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होगा, जो भी ब्लड में यूरिया होंगे, जो कुछ फिल्ट्रेट होगा, जो यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा ना वुमेन कैप्सूल के अंदर, हाई टू लो होगा, तो यहाँ पे जो आते हैं सबको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट, दिस फिल्ट्रेट is get concentrated and here they called urine। फिल्ट्रेट यहाँ यूज करते हैं, यहाँ क्या यूज करते हैं, यूरिन। दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, फिल्ट्रेट क्यों, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा होगा, यूरिया यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड भी आ जाएंगे, ग्लूकोज भी आ जाएंगे, ड्रग्स भी आ जाएंगी। अब आ जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, तो बॉडी का भी नुकसान हो जाएगा। तो क्या होती है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल होती है, ऐसे ब्लड वेसल होती है। आप बुक में अपने देखिए, सी ब्रांच ऑफ रीनल वेन लिखा है ना, ये देखिए यहाँ रीनल आर्टरी लिखा है, जो इसमें आ गई वहीं देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो रीनल वेन भी है। तो क्या होता है, ये देखो ऐसे दिखाया है ना बच्चों, यहाँ पे ये ऐसे लाइन होते होते देखो, ऐसे होते होते देखो, ये देखो लाइन ऐसे ऐसे होते होते देखो। तो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल है, इसका नाम होती है, जो आर्टरी होती है इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, देखो इस डायग्राम से कम समझ में आएगा, आप इससे समझो। दिस इज नोन एज वासा रेक्टा, जो कि इसी के पैरेलल चल रही है। तो क्या होता है, यहाँ पे मान के चलो कि इसके अगर इसमें ज़्यादा कोई चीज़ रहा, काम की रही, तो बॉडी रीअब्जॉर्व कर लेती है, बॉडी रीअब्जॉर्व कर लेती है, ऐसे रीअब्जॉर्व करती रहेगी, ठीक है। वाटर को भी रीअब्जॉर्व करती है, यहाँ पे सॉल्ट को रीअब्जॉर्व करती है, यहाँ पे किसको करेगी, वाटर को। तो वाटर निकल जाएगा इस फिल्ट्रेट से, तो कंसनट्रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगी, दवाओं की भी ले लेगी, फिर यहाँ से सॉल्ट को भी ले लेगी। यहाँ पे क्या होगा, केवल वाटर को ले रही है, तो क्या होगा, ये हमारा जो सोल्यूशन यहाँ पे होगा, जो फिल्ट्रेट होगा, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सेलेक्ट करती है बॉडी, किसको किसको अंदर लेना है, किसकी बॉडी में कमी हो रही है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेकेंड, फर्स्ट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके बच्चों, आप यहाँ देख लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड वाला पार्ट। तीसरा बच्चों यहाँ पे होता है, मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट यहाँ चला गया है, तो मान लो बॉडी को लगता है नहीं, सॉल्ट को और रीअब्जॉर्ब करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ट्यूबुलर सिक्रेशन, सिक्रीट करती है बॉडी से। बॉडी क्या करेगी, सिक्रीट करा के कहाँ ले जाएगी, इसको वापस ले जाएगी डीसीटी वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। देखो नाम थोड़ा उल्टे कॉन्सेप्ट के हैं, बॉडी के रिस्पेक्ट में है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, बट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स हु इज सेलेक्टिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू विच एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, बॉडी। दिस इज व्हाट इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बॉडी क्या करती है, जो मिनरल्स इसमें काम के हैं उसको वापस कर लेती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या हुआ, बॉडी को लगा कि बॉडी को लगा कि कुछ ज़्यादा ही मैंने कर लिया, भाई सब कुछ बायोलॉजिकल है, बॉडी को लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, कुछ सॉल्ट है, कुछ और भी चीज़ें हैं, ये वापस चली जाएं, ठीक है। तो क्या होती है, बॉडी इसको सिक्रीट कराती है, क्या कराती है, सिक्रीट कौन कराएगी,
बॉडी कहाँ से, ब्लड वेसल से, इसमें डीसीटी वाले पार्ट में, ठीक है। वन मोर टाइम, जो यहाँ से ब्लड आई है, अल्ट्रा फ्लट्रेशन दोनों के बीच में हो गया। आप जिसमें देखो ये भी बता दिया कि ये बॉडी रिअब्जॉर्ब करती है, यहाँ बॉडी ही सिक्रेट करती है, इसलिए उन्होंने ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये कहाँ होगा, पीसीटी में, ये कहाँ होगा, डीसीटी में। ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, रेनल ट्यूब्यूल टू ब्लड वेसल। इसका उल्टा क्या है यहाँ पे, ब्लड वेसल टू डीसीटी, ऐसे कर लो। रेनल ट्यूब्यूल कौन सा, ये पीसीटी, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट लास्ट वन इज द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड फॉर द पर्सन हुज किडनी इज फेल, ओके, जिसकी किडनी फेल हो चुकी उसमें। क्यों, क्योंकि किडनी तो फिल्टर कर नहीं रही बच्चों, तो क्या होगा, सारा सब कुछ बॉडी के से निकलना जरूरी है, अदरवाइज यूरिया बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और उसके पैरों में, पहले चेहरे में स्वेलिंग आती है। किसी की किडनी फेल हो गई होने वाली है तो उसके चेहरे में स्वेलिंग आती है, फिर उसके पैरों में आती है, क्योंकि यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा। तो दैट पर्सन्स यूरिया एंड यूरिक एसिड मस्ट बी रिमूव्ड। तो कैसे रिमूव किया जाएगा, बाई अ इंस्ट्रूमेंट, वी कैन से बाई अ इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो हीमोडायलिसिस इज अ डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन अ पर्सन whose kidney is fail, and you all can write more about this from this diagram, ठीक है बच्चों। देखो इसमें ये किडनी है, ये आदमी की है, ये यहाँ पे इसके आर्टरी, एक आर्टरी से एक ब्लड की जो होती है ना, ब्लड क्या बोलते हैं इसको, जो ड्रिप होती है, ड्रिप लगा दिया गया यहाँ से। और देखो ये इम्प्योर ब्लड इसमें जा रहा है, इम्प्योर ब्लड इसमें होते 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 फिर देखो ये प्योर होके पूरा इसमें चली जा रही है, इसके वेन्स में चली जा रही है। तो वन साइड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिस मशीन, और प्योरिफिकेशन के बाद क्या हो रही है, इसमें वापस चली जा रही है। अब इसमें बच्चों जानते हो ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन लगी है, देखो लिखा ना, ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ से जो यूरिया यूरिक एसिड है इस रेड वाले से येलो वाले में चले जाते हैं, फ्रॉम रेड टू येलो, ठीक है। और यहाँ पे देखो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन भी डालते रहते हैं कि इसका पीएच, अंदर का जो पीएच है, जो डायलाइजर सोल्यूशन का, उसका पीएच मेंटेन रहे एज अ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो इस तरह से होता रहता है। इसमें यूरिया डायलाइजिंग सोल्यूशन, देखो यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स इसमें आता रहता है, देखो ये येलोइश वाले से है ना ये बच्चों, इस तरह आता रहता है ये। और जैसे द चार्ज ऑफ दिस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एटलीस्ट 1000 रुपीज पर डे ऑफ डायलाइजर, ओके। इन द प्राइवेट 4000 to 6000, depends on the category of the school, category of the hospital, okay. So that's all, and if you want to study more about this, if you don't have book, then you can go through it. I'm just pause the video, okay. So thanks for watching, and question answer, this chapter is completed and I have taught this chapter, okay. So this is the question answer, you all especially my school, मेरे स्कूल के बच्चों, पूरा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना ही है, ठीक है। आई एम जस्ट जूमिंग इन, आप वीडियो पॉज करके बना के लिख लेना, ठीक है। ये पूरे लिखने हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आफ्टर दिस चैप्टर summer vacation will start, okay, and very soon I will upload my holiday homework also for the students. So bye bye, take care.